گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا راوی برج پر میڈیا سے گفتگو۔ گورنر پنجاب کی دریائے راوی میں پانی کی صورتحال کے متعلق صحافیوں کو دی گئی بریفنگ کے متعلق جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف عظیم چودھری سے۔ جی ناظرین، آج گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے راوی برج پر سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بھر میں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور تمام اداروں کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ راوی کے اس مقام پر اس وقت 1,70,000 کوسیک پانی گزر رہا ہے، جو کہ 30 سالوں کے دوران آنے والا سب سے شدید سیلاب ہے۔ گورنر نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ خطرے کے علاقوں میں فوری طور پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور ریلیف سرگرمیوں میں تیزی لائی جائے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جلد متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے گفتگو کے دوران کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں سیاسی نااہلی کی وجہ سے ڈیمز نہیں بن سکے، جس کے اثرات آج ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ ڈیمز کی تعمیر کا عمل شروع ہو چکا ہے، ہمیں اس حوالے سے ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی صورتحال سے بچا جا سکے۔ جی اٹک سے ہمارے نمائندے حمید احمد اوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک شہر میں ربیع الاول کا چاند نظر آنے کے بعد رات کو ایک ریلی نکالی گئی جس میں لوگوں نے جھنڈے اور شمع اٹھائی ہوئی تھی۔ علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ ربیع الاول جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں جلوس بھی نکالیں گے اور حمد و ثنا بھی کریں گے، اور ہماری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہوں اور کسی کا حق نہ کھائیں اور کسی کے بارے میں برا مت سوچیں اور لوگوں کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ پشاور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت ترجیحی ترقی منصوبوں سے متعلق اجلاس پشاور چیف سیکریٹری، ایڈیشنل چیف سیکریٹری پلاننگ و ڈیولپمنٹ اور متعلقہ محکموں کے انتظامیہ سیکریٹریز اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں رواں مال کے سال کے دوران مکمل کرنے کے لیے بیک سروس ڈلیوری کے اہم منصوبوں کی نشاندہی۔ ان ترجیحی منصوبوں میں صحت، تعلیم، آبنوشی، مواصلات، آباشی، ریلیف اور دیگر شعبوں کے منصوبے شامل۔ صوبائی کابینہ نے ان ترجیحی اور تکمیل کے قریب منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے 20 ارب روپے اضافی مختص کیے۔ ان ترقیاتی منصوبوں کے لیے اضافی فنڈز مختص کرنے کا مقصد ان کو جلد مکمل کر کے فعال بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشاور یہ عوامی خدمات کی فراہمی کے فوری نوعیت کے منصوبے ہیں، ان کی بروقت تکمیل اہم ترجیح ہے۔ علی امین گنڈا پور۔ گزشتہ سال کے آخری 3 ماہ میں تکمیل کے قریب منصوبوں کو جو اضافی فنڈنگ ہوئی ہے، اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور۔ رواں سال افتتاح سے ہی فارمولہ کے تحت فیڈ ریلیز ہوں گے تاکہ تکمیل کے قریب منصوبے رواں سال ہی مکمل ہو جائیں۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم پی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے ای خدمت مرکز کا اچانک دورہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس شفیق احمد ڈوگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے نادرا کاؤنٹر، لرننگ لائسنس، رجسٹری، چالان، بینک کاؤنٹر اور استقبالیہ سمیت تمام اہم سیکشنر کا معائنہ کیا اور وہاں موجود لوگوں سے براہ راست بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسائل اور سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ڈاکٹر آصف طفیل نے مرکز میں موجود استقبالیہ کاؤنٹر سے لے کر سہولت کاؤنٹر تک کے تمام مراحل کا بغور جائزہ لیا اور عوام کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کو سراہا۔ اس موقع پر انہوں نے ای خدمت مرکز انچارج کو ہدایت کی کہ روزانہ کی بنیاد پر آنے والے سائلین کے مسائل فوری حل کیے جائیں اور مرکز کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے۔
साहिवाल से रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने कमिश्नर साहिवाल के हमरा दाद बलोच के मुकाम पर मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जारी कटाव के खतरात और बचाव के इकदाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड उसामा मजीद चीमा और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ ज़िली इंतजामिया की अवलीन तरजीह है, इस सिलसिला में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुतलका महकमों को हिदायत की कि कटाव रोकने के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए और मुमकिना खतरात पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों को रिहायशी खुराक और तिबी सहूलियात बिला तातील फ्राहम की जाए और सफाई के मेयार को बेहतर बनाया जाए ताकि सेहत आमा के मसाइल पैदा ना हो। कमिश्नर साहिवाल ने अवाम से भी अपील की कि किसी भी हंगामी सूरत हाल या खतरे की इतला फौरी तौर पर जिली कंट्रोल रूम या मुतलका महकमों को दें ताकि बर वक्त इकदाम यकीनी बनाए जा सके। उन्होंने कहा कि रिलीफ ऑपरेशन का सिलसिला मौसम की बेहतरी तक जारी रहेगा और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन तावन फराहम किया जाएगा। साहिवाल से रिपोर्टर एमपी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल राना ताहिर रहमान खान ने पुलिस लाइन साहिवाल में मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौका पर दीगर अफसरान भी डीपीओ साहिवाल राना ताहिर रहमान खान के हमरा थे। मौका पर मौजूद अफसरान ने डीपीओ साहिवाल को मस्जिद की तमीर के हवाले से ब्रीफिंग दी और डीपीओ साहिवाल ने जारी तमीरात काम का जायजा लिया और जरूरी हदायत जारी की कि मस्जिद के संगे बुनियाद के मौका पर खुसूसी दुआ भी की गई। साहिवाल से रिपोर्टर एमपी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के लिए मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चीन से रवाना, हर जिला में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गयी। वजीर आला ने बताया कि पंजाब की आवाम के लिए ये बसें चंद हफ्तों में पहुँच जाएंगी और दिसंबर तक सूबे के हर जिला में जदीद इलेक्ट्रिक बसें दवा होंगी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें काम किराया सिर्फ 20 रुपए होगा ताकि आम आदमी भी आसानी से सफर कर सके। मुसाफिरों की सहूलत के लिए बसों में एयर कंडीशनर और अंदरूनी मौसम कंट्रोल का निजाम मौजूद होगा, जबकि खवातीन को हरासा करने के वाकयात से बचाव के लिए CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। साहिवाल से रिपोर्टर एमपी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात नवंबर में सूबा भर में मुनाकिद होंगे। इंतखाबात में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए हैं और इस दौरान उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों में नुमाया तेजी आ गई है। पंजाब बार कौंसिल ने उम्मीदवारों के लिए ज़ाबिता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने का फैसला भी किया गया। पंजाब बार कौंसिल के मुताबिक उम्मीदवारों को बैनर्स, पैना, फ्लैक्स, इश्तहारात और स्टिकर्स के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। उम्मीदवारों या इनके हामियों को असला की नुमाइश से भी बाज रहने की भी हदायत की गई है। ज़ाबिता इखलाक के मुताबिक उम्मीदवार ना तो वोटर के घरों में जाकर वोट मांग सकेंगे और ना ही खाने, चाय या दीगर ज़ियाफत दे सकेंगे। उम्मीदवार सिर्फ ज़ाती मुलाकात खतों या 5 बाई 3 इंच के स्पेशल विजिटिंग कार्ड के जरिए वोटर से राब्ता कर सकेंगे, जबकि कवायद की किसी भी खिलाफ वर्जी को मिसकंडक्ट तस्वर किया जाएगा। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जिली इंतजामिया चनियोट ने एक बार फिर मुतनबा किया है कि दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लिहाजा दरियाई पट्टी पर अभी तक मुकीम अफराद फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने बताया कि गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज तहसील चौक में भी फील्ड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। तहसील चनियोट के सैलाब मुतासरीन इस्लामिया कॉलेज की फील्ड रिलीफ में मुंतकिल हो सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अगर किसी को मुआशी मुंतकिल करने में मसला है तो वो इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड, झुमरा रोड और मुआशी मंडी जंग रोड पर जानवर शिफ्ट कर सकते हैं, जहां जिली इंतजामिया सहूलियात भी फ्राहम करेगी।
चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जज अदबी परवार जंग पंजाब पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान साजिद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क भर में खास तौर पर पंजाब में सैलाब के खतरात को मद्देनजर रखते हुए और डीसी के ऐलान जंग को हाई अलर्ट जारी करने पर तमाम तयशुदा अदबी सकाफती सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अल्लाह पाक पंजाब पर अपनी रहमत फरमाए। सूरत हाल नॉर्मल होने पर अपनी अदबी सकाफती प्रोग्राम के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायफान वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बच्चों की सालाना तालीमी कारकर्दगी को उजागर करना और इनकी हौसला अफजाई करना था। प्रोग्राम में 14 अगस्त की मुनासबत नन्हे फूलों ने अपनी मासूम आवाज में पाकिस्तान से मोहब्बत और वतन की अजमत का इजहार किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिद दाद खोखर LM इमरान और डॉक्टर आसिम खोखर थे, जबकि मोहम्मद अमीन फहीम जोपो, लेडी डॉक्टर तैयबा जुल्फकार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर के जिली कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अहमद राना ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे और दीगर खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए थे। नन्हे तलबा के मिली नगमों में वतन की मट्टी से मोहब्बत और पाकिस्तान को संवारने का अज़्म नुमाया था। हाज़रीन ने बच्चों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। खालिद दाद ने अपने खिताब में सरपरस्ते आला साहिबान मोहतरमा एजाज फरजाना लाली और डॉक्टर निसार की नाकाबिले फरामोश खिदमत का जिक्र करते हुए कहा कि साहिबान स्कूल न सिर्फ बच्चों को मेयारी और बिल्कुल मुफ्त तालीम फ्राहम कर रहा है, बल्कि गरीब और यतीम बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ तरबियत, इखलाकी रहनुमाई और हुब्बुल वतनी का शऊर भी दे रहा है। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए चनाब के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में सैलाबी पानी का बहाव 5,24,600 क्यूसेक के करीब, जबकि मजीद पानी आ रहा है। दरियाए चनाब में सैलाबी पानी से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी पानी के बायस हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाबी पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। कीमती सामान पानी की नजर हो गया। रेस्क्यू टीमें और जिली इंतजामिया सैलाबी रेले में फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकाल रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों से नकल मकानी करने वाले अफराद को फीड रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया जा रहा है। शरकपुर शरीफ अपर शनाब नहर का पानी शरकपुर की हदूद में दाखिल। नुमाइंदा शरकपुर गुलशनाज से ज़िला शेखपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ के कुछ हिस्सों में सैलाब के पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। स्लाटर हाउस जाने वाला रास्ता ज़ेरे आब आ गया। तहसील इंतज़ामिया मौका पर मौजूद हैं। पानी के बहाव को कम करने की कोशिशें जारी हैं। लोगों को महफूज मकामात की तरफ जाने के लिए इंतज़ामिया के ऐलानात जारी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मियां काशिफ भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल MS कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट साहिवाल अलियास अंजुम ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बहुत जल्द साहिवाल में एंजियोग्राफी और बाईपास ऑपरेशन की तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। डॉक्टर अलियास अंजुम ने मजीद कहा कि तमाम मशीनरी को इंस्टॉल कर दिया गया है। बहुत जल्द बकाया तमाम स्टाफ भी मुकम्मल हो जाएगा। इस मौका पर डॉक्टर समीउल्लाह, चेयरमैन प्रेस क्लब साहिवाल अजीजुल हक गराया, सीनियर सहाफी राना वहीद, मलक अरफान, टीपू सुल्तान, काशिफ मुश्ताक भट्टी, चौधरी नजीब अहमद और शरीफ मुगल भी मौजूद थे। डॉक्टर अलियास अंजुम ने तमाम मीडिया नुमाइंदगान को कार्डियोलॉजी वार्ड का विजिट करवाया और ब्रीफिंग दी।
इब्रार हुसैन भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ब्रिगेडियर राजा हसन अब्बास के इकलौते फर्जंद जवान साल कैप्टन तैमूर अब्बास वजीरिस्तान के महाज पर जाम शहादत नोश फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि अलैहि राजिऊन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। इनकी नमाज जनाजा इनके आबाई गांव धरोगी राजगांव में अदा की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन ने सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत किया और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौका पर पाक फौज के आला अफसरान, चकवाल पुलिस के अफसरान, एसपी इन्वेस्टिगेशन चकवाल, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीपी हेडक्वार्टर्स, एसडीपीओ चुआ सैदन शाह, डीटीओ चकवाल, एसएचओ थाना सिटी चकवाल, सदर चकवाल डडियाल, डोहमन इंचार्ज एलीट कसीर तादाद में पुलिस मुलाजमीन और जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने कसीर तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन और चकवाल पुलिस की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों के चादर भी चढ़ाई गई। शुहदा हमारे माथे का झूमर है और इनकी कुर्बानियां लाजवाल हैं। डीपीओ चकवाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन। इब्रार हुसैन भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, एमपी न्यूज चकवाल। खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मान वाला से। दरियाए सतलुज में हाई फील्ड की सूरत हाल चौथे रोज भी बदस्तूर जारी। दरिया सतलुज के मुकाम बैरी पेरी पर बंद टूट गया। रंगे वाला बोर्ड सिंह सांदा खाने व सैकड़ों एकड़ अराजी जेरे आब, कई घर बेघर, इंतजामिया मुतहर्रिक। मंडी उस्मान वाला रेस्क्यू पुलिस, पाक आर्मी, रेवेन्यू, इरिगेशन का अमला हिफाजत इकदाम में मसरूफ। मंडी उस्मान वाला दरियाए सतलुज में सैलाब की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई। हाई फील्ड का सिलसिला बदस्तूर चौथे रोज भी जारी। बैरी पेरी के मुकाम से बंद टूटने की वजह से रंग वाला बोर्ड संग सांदा खानवा में कई घर बेघर हो गए। दरियाई कटाव संगीन सूरत हाल बेदार हो चुकी है। घरों में पानी दाखिल होने से इलाका मकीन परेशान है। इंतजामिया सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ अमल दिखाई देती है और इस वक्त दरियाए सतलुज से 2.5 लाख कैवेक्स का खतरनाक रेला गुजर रहा है। मलिक मोहम्मद हुसैन, नुमाइंदा मंडी उस्मान वाला, जिला कसूर।